for this chapter 7 of grade 8, which is called comparison of quantities, है ना? तो चलिए, let me know once you're able to see my screen. देख पा रहे हो screen आप? Sir, I'm Okay, able to see your screen. you're able to see my screen. Okay, very nice. तो देखिए, we are going to do second class on the topic called comparison of quantities. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की तुलना. ठीक है. तो देखिए, इसमें हमने क्या क्या सीखा. हमने सीखा व्हाट इज परसेंटेज, हमने सीखा व्हाट इज रेशियो, या इसको रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात, और परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत. तो चलिए इसका हम लोग रिवीजन करते हैं, एंड देन वी विल go to the next thing that we have to learn, which is called interest and compound interest. ठीक है. तो अभी तो हमने सीखा परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब होता है पर 100. ठीक है. परसेंट जो होता है, एज आई सेड, पर, दिस सेंट स्टैंड्स फॉर सेंचुरी, पर इज पर. ओके. तो अगर इफ somebody says 20%, meaning 20 out of 100. If we are talking about 100, this is 20 out of 100. So how do we relate this? Meaning, let's say in a class there are 60% boys and 40% girls. Meaning, if there are 100 kids in that class, 60%, meaning 60 out of 100 are boys and 40 out of 100 are girls. So if you're talking about a class of 100, इसमें 60 boys रहेंगे and 40 girls रहेंगे. This is what is percentage. I'm repeating again. Any percentage means that much out of 100. So if I'm saying I got 80% marks in maths, what it means is I got 80 out of 100. मतलब मैंने अगर 100 नंबर का एग्जाम लिखा तो मुझे 80 मार्क्स आए उसमें. तो 80 out of 100 is what I got. Okay. मतलब 20 मार्क्स जो है I could not get. या तो मैंने वो सवाल किए नहीं, या फिर मैंने किया तो गलत किया, जिसके लिए मुझे मार्क्स मिला नहीं. So any percentage means that much out of 100. ठीक है. So again, going back to the same example that I was giving, कि 60% boys and 40% girls. अगर कोई बोलता है कि क्लास में 60% boys हैं और 40% girls हैं, this is boys, this is girls. This doesn't mean कि you have always 100 kids in the class. उसमें 60 boys हैं 40 girls हैं. नहीं. This says the ratio in which they are distributed. Meaning, if there were 100 kids in the class, then there were 60 boys. ठीक है. 60% मतलब 60 out of 100. So I'm repeating myself. If somebody says there were 60% boys in the class, meaning if the class was of 100 kids, there would have been 60 boys. अगर 100 बच्चों का क्लास होता तो उसमें 60 लड़के थे. That is what 60% means. तो मान लिया जाए, let's say if the class is having only 50 kids, 50 kids, लेकिन the teacher is saying there are 60% boys. तो अगर कोई बोलेगा कि पता करो भाई कितने बच्चे हैं, कि टोटल कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं क्लास में. अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. If you get to know that there are 50 kids in a class and 60% of them are boys, tell me how many boys and how many girls are there in the class. मतलब
एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 60% बॉयज हैं, लड़के हैं। तो बताइए कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं क्लास में। नाउ लेट्स डू इट। तो क्लास हैज 50 किड्स एंड 60% बॉयज। ओके, तो चलिए, हमको बॉयज का परसेंटेज पता है। तो अगर 60% बॉयज है, क्लास में लड़के होंगे या लड़कियां होंगी? तीसरा कोई जानवर तो होगा नहीं कि भाई 10% जो हॉर्सेस है, 90% पैरट्स है, वैसा होगा नहीं। तो लड़के हैं और लड़कियां हैं। सो 60% अगर बॉयज हैं, मीनिंग 60 आउट ऑफ 100 आर बॉयज, मीनिंग अभी कितने परसेंट बच गए लड़कियां? रिमेनिंग 40% आर गर्ल्स। समझ पा रहे हो आप लोग मेरे साथ हो? कि अगर कोई कहेगा क्लास में 60% बॉयज हैं, तो व्हाट परसेंटेज गर्ल्स? बताइए क्रिस। तो देखिए, what I'm saying, others. So others, Five six. we are just doing a recap of what we have learned so far, and then we'll do some more practice. Okay. So this is for chapter 7, which is called comparison of quantities. And in this chapter, we'll learn percentage, we'll learn about taxes, we'll learn about ratios, we'll learn about simple interest and compound interest. Okay. So far we have learned about ratio, we have learned about percentage, and we have learned about discount. I'm just doing a recap. Okay. तो देखिए, परसेंटेज, व्हेन यू से परसेंटेज या प्रतिशत, इसका ये मतलब होता है a number out of 100. So somebody says 20%, meaning 20 out of 100. Correct? Abhi, the example that I was kind of explaining was that let's say somebody says there are 50 students in a class, 60% are boys. Obviously, rest will be girls. Tell me how many boys and girls are in the class. So what I was saying was, if there are 60% boys, that means what is the percentage of girls? 40. So 60 out of 100 are boys, meaning बाकी जो बच गए वो सभी लड़कियां हैं, right? So 60% boys and 40% girls. I mean, this should be easy. Meaning, if somebody says you got 80% marks, meaning you did not get remaining 20%, right? Total 100% होता है, percent out of 100. You got 80%. You got 80 out of 100. Correct? So what you did not get was 20 out of 100. मतलब वो भी आप स्कोर कर सकते थे if you would have performed better in the exam. Correct? तो लाइकवाइज आपको कुछ परसेंटेज बताया जाएगा, दूसरा पार्ट जो परसेंटेज का दैट यू कैन इंटरप्रेट. सो यू वर टोल्ड कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 60% आर बॉयज, मीनिंग 40% आर गर्ल्स. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स. अभी तक कोई डाउट? No, sir. नो, ठीक है. तो अभी देखिए, 50%, 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 50 किड्स हैं टोटल क्लास में, 60% बॉयज. तो देखिए, we will not do any maths here. Okay, we are telling story, meaning percentage के बारे में we know it is out of 100, meaning if there are 100 students in the class, there were 60 boys. That's what 60% means, correct? For every 100, there were 60 boys. Now we are told that there are 50 kids only. So out of 100, there were 60. What was the case if there are 50? So let's find it out. So if there was only one student in the class, that means how many were boys? 60 divided by 100. ये 100 इधर आ जाएगा, है ना? So now let's calculate. If there are 50, we'll multiply. So हमारा, see, in maths what we do, if somebody says what, find out how much it will be for some number, you always try to find out what will be the case if I have only one. Because if I have one, I can always multiply it with the number, right? 15 के लिए कितना? Let's say एक बच्चे को मिलता है, one kid gets 2 chocolates.
How many chocolates will 15 kids get? I know one kid will get two, so 15 will be this multiplied by 15. So you always try finding the value for one. So likewise here, for this example of 50 students in the class, 60% boys, what we're trying to do is, if there are 100 kids, then there were 60 boys. This is what percentage is telling me. If there was only one kid in the class, what will be the number of boys in the class? That will be 60 divided by 100. कि भाई 100 को इतना है तो 1 को कितना होगा? You have to divide. So divide it. So if there was only one kid in the class, how many boys were there? This is some fraction number. I don't mind. Let it be like this. Now if I have to find out if there were 50 kids, because this is what I know, there are 50 kids in the class. So if there were 50 kids, how many boys? So whatever is the value for one kid, I will multiply that by 50 now. And this tells me the answer. 2. So this becomes 30. Meaning, in a class of 50, 60% boys. Obviously, 40, remaining 40% are girls. So, for every 100 students, there are 60 boys. For one student, the number of boys will be 60 by 100. So, for 50 students in the class, the number of boys will be this, which is equal to 30. Mil gaya? So, 50 kids, you have 30 boys and 20 girls. This is the answer. Okay? You can do it by, this is 60%, this is 40%. You know the total number of students in the class. You could have picked up 60 as a case to calculate. You could have picked up 40 as a case to calculate. Any which way, you'll get you the same number. ठीक है? अभी बताइए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई. I went with my speed, assuming कि आप लोग समझ रहे हो, लेकिन बताइए, डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ूंगा. For okay, on chapter. To the speed of scooter 30 किलोमीटर पर आवर. तो कुछ नहीं होता है लफड़ा. ठीक है, क्या हो गया उसको? Something has gone wrong with my. Okay. Just give me a minute. My whiteboard had a problem. मुझे बताइएगा if you are able to see my whiteboard. Okay. अभी I'm just fixing it. Okay. आप लोग को मेरा whiteboard दिख रहा है? Yes, sir. Okay. तो देखिए, इस यहाँ पे सवाल ये था, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर वर्सेस स्पीड ऑफ स्कूटर 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो रेशियो कुछ नहीं होता. ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज ये नंबर, जो ये यूनिट जो है, दैट हैज टू बी लुक्ड एट वेरी केयरफुली. सो रेशियो जब भी होता है, it is always like this. ठीक है, and then the unit, you have to make sure that the unit is always the same. ठीक है, तो देखिए फिर से हम सवाल को देखते हैं. स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. सो ठीक है, ये 15 by 30 था, तो 15 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट थिंग यू विल ऑलवेज चेक इज यूनिट. देखिए यूनिट दोनों का सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया आपका स्पीड ऑफ
ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर, तो ये हो जाएगा 15:30, बट दिस इज द रेशियो। इसमें कुछ करना नहीं है, दिस इज जस्ट एग्जांपल। यहाँ पे ध्यान देंगे व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, द नंबर सी और नंबर बी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 50 पैसे टू 5 रुपीज। देखिए 50 पैसे टू 5 रुपीज है ये, सो दिस 50 पैसे टू 5 रुपीज। इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक एट इज यूनिट, यू हैव टू ब्रिंग इट इन द सेम यूनिट एंड यू विल ऑलवेज पिक द स्मॉलर यूनिट। पैसा जो है, ठीक है, तो फर्स्ट इज 50 पैसा। व्हाट विल डू इज विल कन्वर्ट दिस इनटू स्मॉलर यूनिट, so 5 rupees, if 1 rupee is 100 paisa, so this becomes 5 into 100 paisa. So this is 50 paise, this is 5 into 100, 500 paise. Now the same thing. Now it is 50 paise and 500 paise. इसका इसका रेशियो, अभी ये यूनिट सेम ही है, तब ये यूनिट को आप गायब कर सकते हैं। रेशियो विल बिकम 50:500। इसको आप ऐसे भी फ्रैक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं, 50/500, ठीक है। तो ओनली वर्ड ऑफ कॉशन हियर इज कि आपको हमेशा यूनिट को ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में देखें 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। दिस किलोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, सो एवरी 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ठीक है। किसी का भी किलो इज इक्विवेलेंट टू 1000, 1 किलोमीटर इज 1000, 1 kilometer is 1000 meters, 1 kiloliter is 1000 liters, right? 1 kilogram is 1000 grams. So you have to always multiply it by 1000 to get to the smaller unit. ठीक है, तो उस पर अभी हर सवाल नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, ये सवाल अच्छा है। 3:4 इज व्हाट परसेंटेज? तो देखिए 3, कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, ये मैंने कल दिखाया था, अभी शॉर्टकट में जा रहा हूँ। 3, sorry, what was the sum? 3:4. So 3:4, इसको you can always write this as fraction, जो मैंने बताया था पहले। So this becomes 3/4. This becomes your numerator, this is your denominator. ये आपका अंश है, ये आपका हर है, ये फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो 3/4, 3:4 you can always write or interpret as 3/4, और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा रीड कीजिए, मैथ ये कहानी होता है, ठीक है। 3, दिस इज 3/4, मतलब for every 3 there's 4, 3/4, for meaning 3/4, 4 चीजें हैं उसमें से 3, ठीक है। what is that percentage? That's what it's asking you. So 3/4, what will be the percentage? What will be the value in 100? What in 100? ये कैसे करते हैं? पिछले क्लास में मैंने किया था, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग फास्ट। इट विल बी 3/4, जो भी जो भी रेशियो दिया हुआ है, यू राइट दैट एज अ फ्रैक्शन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज होता है पर 100, मल्टीप्लाई इट बाय 100, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद 100, दिस इज व्हाट द परसेंटेज वुड बी। 3/4 into 100 will be 75%, ठीक है। इसीलिए अभी देखिए दूसरा एग्जांपल, बोलते ना मुझे आधा दे दो, आधा दे दो, कोई बोलता मुझे 50% दे दो। तो देखिए नाउ यू कैन रिलेट, ये हुआ 1:2, ये हुआ आधा, ये हुआ आधा का परसेंटेज, क्या हो गया? 50%। ठीक ही बोल रहा था ना, आधा दे दो मतलब 50% दे दो। 1/4 दे दो, आपके पास जो एप्पल है उसको काट के उसका 1/4 मुझे दे दीजिए भाई। तो क्या हो गया? 1/4 ऐसा हो गया। 1/4 का परसेंटेज में कितना? मेरी 25% ऑफ एप्पल दे दो, क्या हो गया? 25, ठीक है। तो ये हम लोग अपने नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं। हाफ इज 50%, 1/4 इज 25%, उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। कोई डाउट तो बताइए भाई बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। No, sir. ओके, दिव्यांश, क्रिस, आप लोग बेटा क्लियर? यस सर। ओके, चलिए
तो फिर इसको क्लियर करते हैं। अभी हम लोग कल क्या सीख रहे थे? डिस्क, यहाँ पे और इसमें सम है और कुछ कुछ, सम सब कुछ सिमिलर ही रहेगा। अब फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस, देखिए यहाँ पे फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। They win percentage was 40. How many matches did they play in all? तो कोई भी जब मैथ आएगा, जब सॉल्व करने के लिए, कभी भी सॉल्व करने के लिए जंप मत कीजिए। स्पेंड योर टाइम रीडिंग दैट सम, अंडरस्टैंडिंग द सम। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना भी पढ़ना पड़ता है, 5 बार भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ लीजिए। एंड देन यू इंटरप्रेट, नोट, स्क्रैच बुक लेके उसको समझिए कि क्या बोल। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब जितना भी मैच खेला उसमें से 10 मैच वो लोग जीते, 10 मैच जीते, ठीक है। इफ दे विन, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, मतलब देयर विन परसेंटेज मतलब उनका विनिंग परसेंटेज वाज 40। कहते ना कि मैंने 10 मैंने 10% स्कोर किया, मतलब इन एग्जाम ऑफ 100 आई गॉट 10। तो यहाँ क्या बोल रहा है? दे वोन 10 मैचेस एंड देयर विन परसेंटेज वाज 40, मतलब 40% मैचेस में वो लोग जीते। हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, कर लेते हैं, फिर देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अभी क्या कर रहे हैं? आपकी जगह पे मैं रहता क्या करता? अच्छा 10 मैचेस जीता है, अच्छा 10 मैचेस जीत के भाई, ठीक है। बोल रहा है क्या? देयर विन परसेंटेज वाज 40%, मतलब 40% मैचेस में ही लोग जीते थे, ठीक है। तो 10 और 40 दो ही चीज में रखना है याद। बोल रहा है क्या? हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले? तो हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि 10 मैच वो लोग जीता है एंड 40% मैचेस में जीते हैं, विच इज इक्वल टू 40%, ठीक है। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ कि भाई 10 मैचेस वो लोग जीते हैं, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज, और उनका विन परसेंटेज वाज 40, 10 एंड 40%। तो बोल रहा है कि भाई मैच खेला कितना, ठीक है 40% मैच जीत तो गया, ठीक है, समझ गया, अच्छी बात। 10 मैचेस में जीते हैं, लेकिन खेले थे कितने मैचेस? मतलब 50 मैच खेल के 10 मैच जीते थे, या 20 मैच खेल के 10 मैच जीते थे? लेट्स फाइंड इट आउट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो बोल रहा है कि 40% विन परसेंटेज है, मतलब 100 मैचेस खेला होता तो 40 मैचेस जीता होता। 40% में मैचेस में विन किया वो लोग, 40% मतलब 40 आउट ऑफ 100। तो अगर 1 मैच खेला होता तो कितना मैच जीता होता? 40/100। क्या कर रहा हूं मैं? ओके, मैं उल्टा कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, ऐसे करते हैं, 10 मैचेस जीते हैं वो लोग, 40% उनका विन रेशियो है, मतलब 40% विन रेशियो, मतलब 40 मैचेस जीते होते, जीते अगर वो 100 मैचेस, सी, अगर 40% का विन रेशियो है, मतलब 40 मैचेस वो जीते हैं इफ दे हैव प्लेड 100 मैचेस, ठीक है। एक्चुअली आपको हमेशा उसको नहीं था, उसको इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी सोच रहे हैं, उसको सोचना है आपको इस फॉर्म में कि बाद में आपसे कुछ डिराइव कर पाए। तो देखिए 40 मैचेस जीता है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं इफ इफ दे हैव प्लेड 100 मैचेस, हमेशा हमको राइट हैंड साइड में वो चीज रखना जो हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10 मैचेस जीते हैं वो लोग, टोटल कितने मैचेस खेले हैं? तो देखिए 40 मैचेस जीते अगर 100 मैच खेलते, तो हमको इस साइड में पता चलेगा कितना मैच टोटल खेला है 10 जीतने के लिए, राइट। तो दिस इज व्हाई आई एम काइंड ऑफ सीक्वेंसिंग इट दैट वे, ठीक है। तो 40 मैचेस, अगर 40 मैचेस जीतते अगर वो 100 मैचेस खेले होते तो, एज पर द 40% विन रेशियो, ठीक है। तो अगर एक मैच जीतने के लिए कितना मैच खेलना पड़ता उनको? 100 डिवाइड बाय 40। अब देखिए एक और थंब रूल है, कोई भी बड़ा नंबर है उसको 1 में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है। 1:40 इज 40, हाउ मच इज 1? 40/40, राइट। मतलब अगर ऐसे मेरी तरह से समझे तो 40 इज 40, राइट। इसको 1 बनाना तो क्या करना होगा? इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, 40/40 इज 1, राइट। तो यहाँ देखिए 40, यहाँ पे 40 था, इसको आपको 1 के कंपेरिजन में जानना है, तो आई विल डिवाइड व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड बाय 40।
That will make it equivalent to 1. कि 40 मैचेस जीतते for if they would have played 100 मैचेस. एक मैच जीतने के लिए how many matches they would have played? 100 जो भी है by 40. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको कि वो लोग 10 मैचेस जीते हैं. तो whatever is the value for 1, I'll just multiply that by 10. काम हो गया आपका. तो क्या पता चला कि they played 25 matches total. They won 10 matches, which is 40% win ratio. अभी देखिए कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है, हाउ डू यू फिगर इट आउट? कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है? दिस इज क्या? दिस इज हाउ विल रीड दिस इन इंग्लिश. तो आपको कोई भी नंबर पता करना हो कि भाई अच्छा मेरे पापा ने कहा कि तुमको 5000 का 2% दूंगा. सुनने के लिए बड़ा लगता है ना, 5000 का 2% दूंगा. अब देखिए तो वो कितना 5000 का 2%, 5000 का 2% कितना होता है? पापा दे रहे थे 100 रुपीज ही, लेकिन ही मेड इट लुक बिग, राइट? 100 रुपये दूंगा वर्सेस 5000 का 2% दूंगा. अंतर है, मतलब अंतर अंतर नहीं है, सेम ही है, लेकिन सुनने के लिए अंतर लगता है, राइट? तो दो चीजें आप लोग यहाँ पर समझेंगे. परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, 20% ऑफ 600, 600 का 20%. दिस इज द कैलकुलेशन. 20 is what percent of 60? 600. This is how you will do. तो आपको मतलब सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है. यहाँ पे somebody says you will get 30% discount for every purchase during Diwali in a store. तो डिस्काउंट 30%. डिस्काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कोई बोलता 30%. आपने एक पेयर ऑफ सॉक्स उठाया, 100 लिखा हुआ था उसमें, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? तो आपका डिस्काउंट होगा 100 का 30%. कितना होता है? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. 100 का जो मेरा प्रिंटेड प्राइस है उसका 30% कितना होता है? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ओके, इजी. 30 पता चल गया. आपने जीन्स उठाया, एक 500 लिखा हुआ है, 500 का 30% कितना होगा? 500 का 30% निकल गया. तो मतलब दिस इज योर डिस्काउंट अमाउंट 150. मतलब 150 का डिस्काउंट है. सो what you will get is 5. What you'll have to pay is 500 minus the discount amount. मतलब 500 का 30%. ठीक है? This is what you'll have to pay to the store. आपने मम्मी ने कहा था कि मैं दिवाली में धनतेरस में एक चम्मच खरीद लेना स्टील का, उसमें लिखा हुआ था 15 रुपए. आपको पता है 30% डिस्काउंट दे रहा है दुकान में हर चीज पे, ठीक है? तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15. तो पहले निकालते हैं कि डिस्काउंट कितना है, छूट कितना दे रहा है, छूट को माइनस कर देंगे हम. तो 15 रुपए पे 30% डिस्काउंट है भाई, ठीक है? 9/2, 4.5 रुपीज का डिस्काउंट है. तो 15 रुपीज का स्पून था, तो 15 में से आपको डिस्काउंट मिल गया 4.5, विच इज 10.5. ठीक है? तो ये हो गया आपका डिस्काउंट का खेल. क्लियर या कोई डाउट? No, sir, no doubt. No doubt on discount. Again, so what I was saying was, if you have to find out what is the value when somebody says X percentage of Y. Y is a number which could be 100, 500, 1000, 1 million, 10 million, 1 billion, whatever it is. Y is a number
y का x%, x%, x per 100, ठीक है. This is how you'll derive it. So that is what we were doing with the discount thing. कि 30%, the store is saying everything, every price, I'll give you 30% discount. 30% of every x, every value, be it a trouser, be it a socks, be it a spoon, be it a pressure cooker, everything. ठीक है, हर चीज पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है. तो किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना, किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना हो, दिस इज व्हाट इट इज. x का y%. Okay, this is how you'll read it. Now somebody says I have 10 rupees, what percentage it is of 25. मतलब कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है. ओके, अब let's put it this way. I got 40 marks in a math exam, okay, where the total marks was 50. How many percentage did I get? I got 40 marks in an exam of 50. How many percentage did I get? ठीक है, this is how you'll calculate it. This tells you got 80%. तो आपको जब भी पता नहीं है कि कोई नंबर किसी का क्या परसेंटेज है, कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. ओके ओके, चलिए अभी कुछ और सम करते हैं. सो वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू by applying, I mean, to derive, how to derive a value if we know the percentage, and we also learn how to derive percentage if we know the values. Meaning I want to know a number is what percentage of second number. कल को कोई बोलेगा आपको कि टेल मी 3 is what percentage of 9. You will just say 3, you'll be a numerator, the number that you are trying to find what percentage it is of or against another number as a denominator and multiply that by 100. ये चीज ही आपको सिर्फ ध्यान, मतलब आपको अगर पता नहीं है किसी नंबर के बारे में कि वो किसी का क्या परसेंटेज हो सकता है, यू विल पुट दैट नंबर एज न्यूमरेटर. किस नंबर का परसेंटेज निकाल रहे हैं वो दैट बी अ डिनोमिनेटर एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, आप लोग ये सब करते होंगे. आई एम जस्ट काइंड ऑफ गिविंग अ स्ट्रक्चर टू इट. ठीक है, तो वी लर्न अबाउट डिस्काउंट. Let's do some maths and see how much we have learned. Okay, देखिए, we'll try doing it verbally and see if something is getting stuck, we'll try doing it on the whiteboard also. A shop gives 20% discount. What would be the sale price of each of these? What would the sale price of each of these be? Okay, अभी यही काम हम लोग कर रहे थे. A dress marked 120, 20% डिस्काउंट सब पे मिल रहा है, राइट. हम लोग अभी स्पून पे, ट्राउजर पे, सब पे निकाल रहे थे, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट. 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 120 का 20% कितना होगा. 120 इंटू 20/100, जो भी वैल्यू होता है दैट यू विल डिडक्ट फ्रॉम द स्टिकर प्राइस. कि भाई जो भी स्टिकर में प्राइस लिखा हुआ था उसमें से डिस्काउंट का प्राइस को माइनस कर दीजिए. दैट इज व्हाट आई हैव टू पे टू द शॉपकीपर. एक सम करेंगे इसमें से. अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस. अ बैग मार्क्ड ₹250. तो देखते हैं भाई कितने में. अगर मान लीजिए कि आप और हम में से कोई जाता है उस दुकान में जहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने एक बैग पिक किया, उस पर 250 लिखा हुआ है, तो मुझे कितना देना है उसका, राइट. तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्काउंटेड अमाउंट. तो किसी भी
नंबर का सर्टन परसेंटेज इज डिराइव्ड लाइक दिस, 250 का 20%। ओके, बस हो गया काम। आपको पता चला कि भाई आपको उस बैग पे यू आर गेटिंग ए 50 रुपीज डिस्काउंट, मीनिंग 250 के बैग पे यू आर गेटिंग 50 रुपीज डिस्काउंट। सो 250 माइनस 50 कर देंगे, 200 आपने दुकानदार को दिया, 50 रुपीज आपका हो गया भाई। ठीक है, अगर पापा मम्मी को पता नहीं है कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो समझिए आपका हो गया पॉकेट मनी। मतलब बिना बताए मत कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज डिस्काउंट अबाउट। ओके, एक और सम देखते हैं, करेंगे नहीं भी तो। अ टेबल मार्क्ड ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन। देखिए, जो हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे थे कि 15,000 रुपीज मार्क्ड है, बिक रहा है 14,400 पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, जो हम लोग कर रहे थे ना, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या परसेंटेज है, दिस इज कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल पे आते हैं, 14,400 में बिक रहा है, शॉपकीपर इज गिविंग यू फॉर 14,400, वेयर इन द स्टिकर सेज 15,000। मतलब उस फर्नीचर का दाम देखेंगे लिखा हुआ 15,000, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं दुकानदार बोलता है कोई बात नहीं, आप अपना अपना मेरा अपना आदमी है, आपको इतने में मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहा है ये बंदा आपको 14,400, कम ऑन, मीनिंग 600 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। दिस इज डिस्काउंट अमाउंट। तो क्या पूछा है सवाल में, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहला चीज तो आपने निकाल लिया, डिस्काउंट गिवन इज, कम ऑन, डिस्काउंट गिवन इज 600। एक मिनट रुकिए, मेरे लैपटॉप का बैटरी डूबने वाला है, तो पूरी टन चार्ज, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि डिस्काउंट गिवन इज 600, वो तो दिख रहा है कि 1500 का प्राइस था, 14,400 में मिल रहा है, तो 600 का डिस्काउंट मिला है। नाउ कम ऑन, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, मतलब 600 का डिस्काउंट जो मिल रहा है, दिस डिस्काउंट ऑफ 600 इज गिवन ऑन द टैग प्राइस ऑफ 15,000। तो कितना परसेंटेज है, 600 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर। बस यही तो करना है, हो गया काम, ये गया 15 4 जा, सो 4% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर। Yes, sir. तो कॉन्सेप्चुअली, या if you guys believe in what should be the approach for solving any sum, okay, कोई भी सम, चाहे वो सेकेंड ग्रेड का सम हो, चाहे वो पीएचडी का सम हो, आवर एफर्ट मस्ट गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं तो सॉल्व करना इज नेवर डिफिकल्ट, आई मीन provided you know the basics needed for that. But most of the times we go wrong because we rush and we don't understand the problem and then we try solving it. तो वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाकी सम भी आप लोग करेंगे अपने नोटबुक में देखेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। कुछ दिक्कत होती है तो बताएंगे मुझे। लेट्स लुक एट सम मोर सम्स, देखते हैं भाई। देखिए, अलमीरा इज सोल्ड एट दिस मच आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट गिवन इज 5%, and after the discount the amount that it is sold for is 5,225। बोलता है फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको करते हैं थोड़ा सा क्विकली, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा so that we can do more, okay, there are a lot of things remaining also, okay। बोलता है 5,225 पे बिक रहा है, डिस्काउंट मिला है 5%, ओके, डिस्काउंट दिया 5%। अभी देखिए, कोई भी चीज को 100 रुपए का चीज था, उसको
5% डिस्काउंट दिया, मतलब इट इज सोल्ड फॉर 95. Are you guys with me? If somebody is giving a 5% discount, that means something which is of 100 rupees is sold for 95. If the discount was 20%, that means something that was for 100 rupees is sold for what number? 80, isn't it? देखिए 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 20 रुपए की छूट है फॉर एवरी 100. ठीक है, तो 100 रुपीज का सामान था, तो उस पर अगर 20% डिस्काउंट बोल रहा है तो दैट इज सोल्ड फॉर 80. हमारा सवाल क्या था? 5% डिस्काउंट मिल रहा है, 5225 पे बिक रहा है. ठीक है, तो 5% डिस्काउंट के केस में मतलब 100 रुपीज का अगर सामान होता तो 95 में बिक रहा था. ओके, या फिर ऐसे लिखेंगे 95 में वो सामान बिक रहा होता इफ द मार्क प्राइस वाज 100 विथ अ 5% डिस्काउंट. इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं, बताइए पहले. कि ये 100 रुपए का सामान है, स्टिकर प्राइस है, उस पर अगर 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो 95 में बिक रहा है. ऑलवेज जो हमको जिसका वैल्यू निकालना है वो हम राइट साइड में रखते हैं, सो दैट वी कैन डू कैलकुलेशन. ओके, तो वही काम कर रहा हूं मैं. ओके, तो देखिए, तो 5, तो यहाँ पे इस सवाल को मैंने ट्विस्ट कर दिया. आपको पता है कि 5% डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो मतलब 100 रुपए का सामान 95 में बिक रहा है. ठीक है, आपको पता ये करना है. आपको बोल रहा है कि भाई सामान बिका है 5225 में और उस पर 5% डिस्काउंट था, तो एक्चुअली उसका मार्क प्राइस क्या था, वो कितने का था एक्चुअली. तो जो भी वैल्यू निकालना है उसको हम राइट साइड में रखते हैं, तो इसलिए मैंने उल्टा लिखा है इसको. 95 में सामान बिक रहा होता विथ अ 5% डिस्काउंट अगर उसका मार्क प्राइस 100 होता तो कितने में, अगर 1 रुपए में अगर वो सामान बिक रहा होता सेम इक्वेशन में कितने पे, तो 100/95, मतलब वो सामान 1 रुपए में बिक रहा होता अगर उसका मार्क प्राइस इतना होता 100/95. बिक रहा है कितने में, इतने में. 1 रुपए में बिक रहा होता वो अगर उसका मार्क प्राइस होता 100/95, जो हम लोग ने पिछले शीट में निकाला. तो अगर 5225 में बिका है तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना था, 100/95 इंटू 5225. अब इसको कर लेंगे हिसाब किताब. ठीक है, तो देखिए ये सुनने के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है. काम हम वही कर रहे हैं. ले देखिए, ऑलवेज यू हैव टू डू टू थिंग्स. ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो तो पहला तो जो वैल्यू निकालना है वो राइट साइड में होगा. ठीक है, उसके बाद आपको अपनी स्टोरी वैसी बनानी है कि राइट साइड में वो चीज आ जाए. कि यहाँ पे क्या था, देखिए 5% डिस्काउंट, मतलब 5% डिस्काउंट सीधा सा मतलब होता है 100 रुपए का सामान 95 में बिकेगा. ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का सामान 90 रुपए में बिकेगा, 90 में बिकेगा. राइट, सो हियर यू नो कि कितने में बिका है. सो वॉट एवर is the sale price after discount is already known to you, this amount. तो आप अपना इक्वेशन को पलट देंगे. आप चाहे आप ऐसे लिखिए 100 रुपए का सामान 95 में बिकेगा विथ 5% डिस्काउंट, या आप ऐसे बोलिए कि 95 रुपीज में बिकेगा वो सामान जिसपे 5% डिस्काउंट हो और जिसका एक्चुअल प्राइस 100 हो. ठीक है, आप इस साइड में इसको, सॉरी, इस साइड राइट में आप इसलिए 100 को लिख रहे हो बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिराइव, है ना. आपको डिराइव करना है एक्चुअल मार्क प्राइस क्या था, क्योंकि बिका तो है आपको 525 में, 5225 में, तो आपको पता करना ये प्राइस क्या था. ठीक है, तो इसीलिए आपने उसको कहानी को पलट दिया, उसके ऊपर कैलकुलेशन किया कि 95 में ये है. तो पहला काम करना है आपको कि जो चीज डिराइव करना है वो उसको राइट साइड में लिखेंगे और हमेशा 1 के कंपैरिजन में वैल्यू निकालेंगे कि 1 में कितना. आप वंस यू नो 1 में कितना, देन यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई दैट बाय व्हाटएवर नंबर यू हैव टू डिराइव इट फॉर. कि 1 में कितना, 5225 में कितना,
10 में कितना, 25 में कितना, आप यू कैन ऑलवेज जस्ट मल्टीप्लाई. तो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड द वैल्यू फॉर अ यूनिट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. हिंदी में बोलते हैं इसको एक एक नियम. यू हैव टू ऑलवेज डिराइव द वैल्यू फॉर वन and then you can multiply that with any number that you want to get the value for. I know this might be little overloaded, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको सोचने की जरूरत है. यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि मेरे को निकालना क्या है, क्योंकि कैसे निकालना है दैट यू ऑलरेडी नो. ठीक है, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई समस्या तो बताइए भाई. और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसको क्लास के बाद फिर से इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आएगा. देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आप कर लोगे. नहीं कर लिया, नहीं कर पाए अगर, तो मतलब टीचर ने कुछ गड़बड़ किया है, तो आप मेरे से पूछ लेंगे सर ये वाला समझ में आया नहीं. ठीक है, देन आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट सम मोर सम्स. अच्छा, ये करने से पहले लेट्स लेट्स लर्न वन थिंग क्विकली. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए हमने डिस्काउंट सीखा, अभी बाकी सवाल भी करेंगे. उससे पहले एक चीज सीखते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, सूद हिंदी में. हाँ, आप बोलते हैं, जैसे आप, आपके पास मान लिया जाए 1000 रुपए हैं, ठीक है, अपने पास रखे रहिए. क्या होगा, ये पैसा पड़ा रहेगा, हो सकता है भूल जाए, खो जाए, गुम हो जाए, या फिर कभी चूहा काट दे इसको, हो सकता है दिमाग लग जाए, टर्माइट जिसको बोलते हैं. एंड देन either you will lose it or at least it will not grow. वो 1000 का 1000 ही रहेगा वर्स्ट केस में, और बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज we find out a way how this number can increase, where I can get some more money on the top of it. And best options are some financial institutions like bank, post office. Okay, और भी उपाय होता है पैसा बढ़ाने का. लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, इंडस्ट्री से कुछ बिजनेस करते हैं. आई विल नॉट टीच दोस थिंग्स. शेयर मार्केट वो सब थोड़ा भारी भरकम चीज है, उसमें जाना, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट. एंड आई वुड नॉट से कि नहीं करना चाहिए, बट जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा. when you have enough information you will make an informed decision. Okay, अभी के लिए सिर्फ देखेंगे कि होता क्या है इसका. बेसिकली जो बेसिक फंडा ये होता है कि बैंक्स में आप अगर पैसे रखोगे, पोस्ट ऑफिस में रखोगे, दे गिव यू समथिंग लाइक 5% ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट. एक बैंक होगा 5% दे रहा है, 1%, एक बैंक होगा 7% दे रहा है, एक बैंक 8% दे रहा है. यू विल चूज कि भाई कहाँ पे पैसा डालना चाहिए. एक होता है गवर्नमेंट बैंक होगा जो कम इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा प्राइवेट बैंक होगा जो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन आपको लगा अच्छा प्राइवेट बैंक पता नहीं कल रहे नहीं रहे, गवर्नमेंट का है भाई, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा है, राइट. सो यू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन which option you find safe, which option you find more lucrative. Okay, कि कहाँ पे मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है, कहाँ पे मेरा सेफ्टी ज्यादा है, एंड यू टेक अ कॉल. जैसे कोई रिटायर्ड आदमी होते हैं तो उन लोगों को रहता है दे आर वेरी व्हाट यू कॉल, दे आर वेरी they have a lot of value for their money because that is their hard earned money. हम लोग का होता है कहीं से मिल गया अगर शॉर्टकट में तो चलो ठीक है यार, थोड़ा पैसा नुकसान में हो तो कोई दिक्कत नहीं, राइट. सो people make the decision based on what is their priority. Are they caring about the safety first, or are they caring more about the interest gained? Okay, so this, we will not go into that aspect. We'll just talk about what is interest. कि मान लिया आपने कहा एक बैंक में आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है. हम लोग बच्चे होते हैं, हम लोग नहीं था घर में दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, बकरीद, जो भी पर्व त्योहार होता है हमारे यहाँ, लोग आते हैं, हमको कुछ मिलता है कि भाई चलो कुछ मिल गया बड़ों से, आशीर्वाद ही बोलते हैं उसको, नहीं. तो जो पैसा मिलता है वो मेरा हमारा सेविंग होता है बचपन में, नहीं. तो मान लिया जाए कि आपके पास 1000 रुपए है, आपको पता है ये पड़े पड़े जो है इसका कुछ नहीं होना है, तो लेट मी ओपन अ बैंक अकाउंट एंड पुट इट देयर, क्योंकि बैंक मेरे को बोल रहा है कि मैं तुमको 8% इंटरेस्ट दूंगा. 8% इज ईयरली, रियल से दिस इज माई ईयरली इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब दे विल गिव यू एन एक्स्ट्रा मनी ऑन द टॉप ऑफ दिस. ओके, अभी आपको इंटरेस्ट निकालना तो आता है, यू विल से ओके कि मेरे पास 1000 रुपीज है, 8% इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है,
एवरी ईयर, मतलब 1000 का 8% कितना होता है, कितना मिल रहा है मुझे एवरी ईयर? आई एम गेटिंग 80 रुपीज फ्रॉम द बैंक एवरी ईयर एक्स्ट्रा। ओके, तो जस्ट फॉर कीपिंग माई मनी विद देम। मेरे बक्से में पड़ा होता, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, मेरा नुकसान कुछ नहीं है, जब भी चाहिए मैं निकाल सकता हूँ उस पैसे को, राइट। लेकिन मेरे को अगर वहां पे बैंक में छोड़ दिया सिर्फ, तो मुझे हर महीने, हर साल बैंक मुझे 80 रुपीज एक्स्ट्रा देगा फॉर एवरी 1000, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको से कितना पैसा मिलेगा, दैट इज जस्ट अ परसेंटेज, जो आप जानते हो परसेंटेज निकालना कैसे है वो आप निकाल सकते हो। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, आपका 1000 जो था आपने एक साल बैंक में रखा, तो 1000 प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, दैट बिकम्स योर न्यू मनी। आपके पास 1000 जो था दैट बिकेम 1080। क्या बोल रही है ना? और कैसे हुआ कि आपको 8% मिल रहा था, कोई बैंक हो सकता है 10% देगा, कोई 15% दे सकता है, राइट। तो जहां भी आपने रखा होगा वहां पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उससे आपको आपका पैसा बढ़ रहा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, और दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्चुअली दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, बिकॉज क्या स्क्रीन पे भर जाता है जगह, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपने मान लिया 1000 रुपीज रखा, ठीक है, बैंक ने कहा मैं आपको 8% सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, बैंक भी बदमाश होता कभी कभी, बोले 8% सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, मतलब एवरी ईयर यू विल गेट 8% ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट विच इज दिस, मतलब आपको 80 रुपीज आपको हर साल देते रहूंगा। तो आपने 5 साल रखा तो 80 × 5 हो सकता है कि, हो सकता नहीं, दिस इज व्हाट द बैंक विल गिव यू एक्स्ट्रा। सो 1000 प्लस 400, 5 साल आपने रखा है 8% इंटरेस्ट पे, तो आपको 5 साल के बाद 1400 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, हर साल सेम इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। ओके, लेकिन इसमें एक कैच है। अभी देखिए, आपके पास 1000 था, आपने बैंक में जमा किया, 8% मिल रहा है, एक साल के बाद में हो गया 1080, 1000 + 80, 80 आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको पता है बैंक बोलता है मैं आपको हर साल 8% दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। आप बोलेंगे ठीक है भाई, मेरे पास जुगाड़ है इसका, पैसे निकाल लेंगे एक साल के बाद, एक साल को ऐसे इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, पैसा निकाल लीजिए बैंक से। अब बोलिए भाई मैं फिर से जमा कर रहा हूँ पैसे, मुझे 8% दो। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसका वन, अभी पिछले आपको 1000 का 8% मिल रहा था, अभी 1080 का 8% मिलेगा सेकेंड ईयर में। आप बैंक की बात मान लेते तो आपको बैंक फर्स्ट ईयर में 80 देता, सेकेंड ईयर में भी 80 देता, लेकिन आपने पैसे निकाल के दोबारा जमा किया अगर सेम बैंक में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 86.4, मतलब सॉरी नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला सेकेंड ईयर के लिए 86.4। तो बैंक ने आपको बोला था 8% एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, उस पर आपको 80 रुपीज दे करके छोड़ देता वो हर साल। सिर्फ नेक्स्ट ईयर में आपने सिर्फ पैसा निकाल के डाला है, तो आपका 86.4 मिल रहा है आपको, मतलब 6 रुपये 40 पैसा ज्यादा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर यह है कि आपका, ऐसे देखिए, आपका मान लिया जाए प्रिंसिपल ये है, आपका पैसा, आपका सेविंग, ठीक है, 1000 रुपये जो बोल रहे थे, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मान लिया जाए आई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आपका ये बिगिनिंग में आपका टोटल पैसा कितना है आपके पास, इतना। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, ये क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट के में, कि आपका प्रिंसिपल तो उतना ही है, पिछले साल में आपको आई मिला था, इस बार फिर से आपको आई मिलेगा, तो आपके पास हो गया प्रिंसिपल +2 आई।
ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपका हर साल का इंटरेस्ट 80 रुपीज जो बोल रहा था वही 80 दे रहा है वो, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस 2i। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल था, उसके बाद आपको साल के अंत में इंटरेस्ट मिला, आपका अमाउंट बन गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब 1000 से जो 80 रुपीज मिला था, 1000 प्लस 1000 प्लस 80 जो मिला था, दिस 1000 प्लस 80 बिकम्स योर प्रिंसिपल, उसके ऊपर इसका इंटरेस्ट, ठीक है, इसका इंटरेस्ट नॉट 80, इसका इंटरेस्ट मतलब 8% ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका बन जाता है नया प्रिंसिपल दूसरे साल के अंत में। और फिर तीसरे साल में वो पैसा जो आपका, मतलब पहला साल में 1000, उससे मिला आपको 80 रुपीज का इंटरेस्ट, 1080 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, उसके ऊपर 8%, उससे जो भी बनेगा उसके थर्ड ईयर में उसके ऊपर आपका फिर इंटरेस्ट ऐड होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका मनी है, जो मनी आपने सेव किया बैंक में, आफ्टर एवरी ईयर दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल, मतलब पहला साल का टोटल अमाउंट आपका प्लस इंटरेस्ट मिला करके आपका नया अमाउंट बन गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर साल के दूसरे साल के अंत में ये आपका प्रिंसिपल जो उसका इंटरेस्ट था वो, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला मिला के वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो दिस बिकम्स अ मोर रिवॉर्डिंग स्कीम, आपको ज्यादा फायदा होता है। तो वो निकालने के लिए जैसे मतलब देखेंगे, मान लिया आपका प्रिंसिपल ये था, ठीक है, आपको मिला क्या, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट, मान लिया जाए आपका इंटरेस्ट था आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इतना पैसा आपको मिला इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, प्रिंसिपल, इसको इक्वेशन के फॉर्म में 1 + r/100, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर में आपको इतना निकला, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं डिराइव करने भी नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन देखना यह है कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट बाई 100, ये जोड़ के होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, सेम चीज है, उसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ओके। दिस इज आफ्टर 1 ईयर, ओके। अगर आपने बैंक में पैसा रख दिया फॉर सर्टेन ईयर्स, मान लिया जाए आपने 5 ईयर्स का रख लिया, तो ये हो जाएगा 5, दिस टू द पावर 5, 1 + r, 1 is 1, r is your rate of interest by 100 into 5। ये इक्वेशन कैसे डिराइव हो रहा है, आई एम श्योर कि आप लोगों ने किया होगा, आप में से कुछ लोगों ने किया होगा। आई कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो बट इट विल जस्ट टेक टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट, ओके। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो बताइए, मैं इसको अगले क्लास में समझाऊंगा फिर, ठीक है। बट अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर 5। अगर इफ यू हैव टू से कि हाँ मैं बैंक में 1000 रुपये रखूंगा, बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, 5 साल के रखूंगा, कितना मिलेगा, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, यू विल से प्रिंसिपल इज 1000 टू 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, 5 साल रखूंगा तो 5, अगर 3 साल रख रहे हो तो 3, और आप कैलकुलेट करोगे। अब ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो 1000 इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 3, आपको पहले इसका वैल्यू निकालना, ब्रैकेट के अंदर जो भी है 1 + 5/100 जो है, इसका आप लोगों ने अगर किया होगा तो ये हो जाएगा 100/100 + 5, दिस इज 105/100। तो आपका ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा, ये 1000 इंटू 105/100 टू द पावर 3। इसका मतलब ये होता है कि 1000 इंटू 105/100 को 3 बार लिखेंगे आप, बिकॉज दिस इज टू द पावर 3। किसी पे पावर 3 या पावर 2 मीन्स you are multiplying it that many times, 2 to the power 2 मतलब
2 into 2. 3 power 5 मतलब 3 into 3 into 3 5 times. ठीक है. So this is a calculation. This is a formula that you might want to remember. I can as well explain you how this formula comes. Maybe I'll just do a small video and put it for you guys to refer it just in the interest of the class. क्योंकि ये जो है फॉर्मूला होता है आपको यूज करते हैं a equal to p into 1 plus r by 100 to the power n. N is the number of years, R is your rate of interest, P is your principal amount. ये क्या बताता है? If you put your money in the bank for your money is P, आपने 100 रुपये रखा, 5,000 रखा, 10,000 रखा, 2 लाख रखा, जो भी अमाउंट है, your money in the bank, which gives you this rate of interest for n number of years, what will be your total sum? कि आपने अगर 1000 रखा होता, देखिए अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, डिफरेंस. हम लोग क्या बात करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. 1000 रुपया 8% इंटरेस्ट पे. सिंपल इंटरेस्ट में आपने मान लिया 3 साल रखा, 3 years. ओके. इसका सिंपल इंटरेस्ट में हमको व्हाट वी फिगर्ड आउट, इट गिव्स मी 80 rupees per year. So up in 3 years they will give me 80 into 3, मतलब 240. So after 3 years my principal was 1000 and interest I'm getting is 80 into 3, meaning my total value becomes 1240 with simple interest. Now let's see कि we will use this formula जो बोलता है कि अगर compound interest पे if I would have used, if I would have kind of agreed for saving it with this amount, same amount, ठीक है, ये 1000 rupees को ही हमने 8% इंटरेस्ट पे ही 3 years के लिए रखा बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितना मिलता है मुझे? तो दिस बिकम्स 1 plus 8 by 100 becomes 108 by 8, that is 25 by 27 by 25. इसका वैल्यू बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकलता है 108 by 100. ओके. तो चलिए इसको, ये मेरा इक्वेशन बन जाता है 1000 into 108 by 100 to the power 3. मैं सिर्फ निकालना चाह रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना पैसा निकलेगा. 1000 into 108 by 100 into 108 by 100 into 108 by 100. देखिए ये 2 गया इधर से, ये गया इधर से. ओके. सो दिस इज 108 into 108 into 100 by 1000. ठीक है. अभी दिस इज 27 25, दिस इज 554. तो देखिए 108 into 54 into 27 कितना होता है देखते हैं. 108 into 57 into 54 into 27. ये सम भी अभी नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो क्या होगा, उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, पर ठीक है कर लेते. चलिए हो रही. कम ऑन. This becomes 1458 to 108. और x this divided by 1000. So this is नहीं, this was not this divided by 1000. This was 25.
This was, but this divided by 25 actually. क्या था, मैंने गड़बड़ा दिया कुछ. 1000 हो गया आपका. दिस वाज, आई थिंक दिस वाज, दिस डिवाइड बाय 25. मैंने उसको इरेज कर दिया है, सो आई डोंट रिमेम्बर दैट. ठीक है. सो अभी अभी गड़बड़ हो जाएगा फिर. अभी मैं पूरा इसको याद करने जाऊंगा तो आई लूज टाइम. ठीक है, अभी छोड़ दीजिए उसको. सो नेट एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस वैल्यू विल बी 1000 into 1.08 into 1.08 into 1.08, या फिर इसको बोलेंगे 1000 into 27/25 into 27/25 into 27/25. What you will figure out is this value is much more than what I was getting as simple interest. Okay, क्योंकि आपका हर नेक्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट मिला होता है दैट आल्सो बिकम्स योर प्रिंसिपल, which improves your chances to make more money or get more interest. Okay, तो ये डिफरेंस था कंपाउंड इंटरेस्ट का. लेट्स डू सम सम्स क्विकली. ओके, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दैट, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट को लेकर के? एंड यू कैन बी ऑनेस्ट. आई मीन अगर लगा कि इस क्लास में नहीं क्लियर हुआ है तो आई कैन टेक वन मोर क्लास एंड एक्सप्लेन दैट. दैट्स फाइन. अदर्स, क्रिस? Sir, clear. ओके, ठीक है. चलिए, तो फिर अभी कुछ सम्स करते हैं तो और क्लियर होगा. ठीक है, सो लेट्स गो हियर. देखिए क्या बोल रहा है. During a sale, a shop offered discount of 10% on the marked price of all items. What would the customer have to pay for a pair of jeans marked at this and two shirts marked at? तो यहाँ पे क्या है, बोलता है कि एक डिस्काउंट. ओके, शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस. मतलब 100 का सामान है तो 10% का डिस्काउंट है, 90 में बिक रहा है. व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट दिस एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच? तो देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि टोटल डिस्काउंट आपको 10% मिलने वाला है. कस्टमर ने उठाया क्या, एक एक जीन्स उठाया 1450 का और दो शर्ट्स उठाए 850 के. तो टोटल जितना भी उसका बिल आएगा उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो साफ साफ दुकानदार ने बोला है. तो ये हैव टू फाइंड आउट कि भाई कितने का सामान सामान उठाया और उस पर टोटल डिस्काउंट लगाएंगे, है ना. तो मतलब 850 इंटू टू, दैट इज द प्राइस ऑफ योर शर्ट्स विच इज 1700 प्लस 1450 का जीन्स है. तो 1700 प्लस 1450, सो हो गया आपका 3150. 3150 का 10% डिस्काउंट. तो आप हमेशा ये कर सकते हैं कि देखिए, जो भी अमाउंट है उसका डिस्काउंट क्या है निकाल लेंगे. तो 3150 का 10% डिस्काउंट होता है 31.5 रुपीज. ओके, 31 रुपया 50 पैसे. नहीं, 3150 का 310.5, सॉरी 310.5. तो आप या तो ये करेंगे कि टोटल प्राइस कितना होता है भाई, 3150 होता है, डिस्काउंट कितना, 3150, 310.5. तो 3150 में उसको माइनस कर देंगे, वो कर सकते हैं. या इफ somebody is offering you 10% discount, मतलब you are paying only 90% of the price. आप उल्टा सोचेंगे. ठीक है, उसमें क्या हुआ, 3150 आपका टोटल दाम है, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 90% into 90/100, that is what you have to pay. So you can choose. आप डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेंगे, उस एक्चुअल प्राइस में से माइनस कर देंगे, या फिर सीधा कि डिस्काउंट के बाद एक्चुअल प्राइस क्या बचता है. तो 10% डिस्काउंट है, 90% हमको पे करना है. 20% डिस्काउंट है, तुमको 80% पे करना है. राइट, दैट इज व्हाट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Arun bought a pair of skates at a sale when the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the mark price. तो ये एक सवाल कर देते हैं. क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है 20%. ठीक है, द अमाउंट दैट ही पेड इज 1600. ओके, ठीक है. तो अभी देखिए 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब
80% ऑफ द प्राइस, मार्क प्राइस ओनली ही हैज पेड। ओके, मतलब अगर 100 लिखा होता तो 80 रुपीज पे करता, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जो चीज निकालना है दैट इज व्हाट विल पुट ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे 100 रुपए अगर लिखा होता तो 80 मिलता। if the mark price was 100, he would have paid 80. What we know is he has paid 1600. Okay, तो हमको इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। This guy has to come this side, meaning 80 he would have paid if the mark price was 100. What we are trying to find, what was the mark price, since he has paid 1600, right? 80 he would have paid if the mark price was 100. How much he would have paid if the mark price was 1? You can always write 80 as 1 into 80, right? So that's what comes down to divide, okay, for deriving value for 1. तो अगर उसने 1600 पे किया हमको पता है, तो एक्चुअली मार्क प्राइस क्या था? तो जो जो भी वैल्यू 1 का है उसको आप 1600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये गया, ये गया, ये, और उसके बाद 8 2 जस्ट 20। तो बेसिकली मार्क प्राइस वाज 2000। ठीक है, तो आपको मैथ करने के पहले डोंट जंप, ऑलवेज थिंक कि भाई मेरे पास शॉर्टकट क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट क्या बताया कि 20% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब 100 रुपए की चीज 100 में बिक रही है। वाई यू वॉन्ट टू डिराइव द डिस्काउंट 20% फर्स्ट देन सब्ट्रैक्ट इट? यू कैन डू इट इन वन शॉट। दैट इज वेयर द एफिशिएंसी कम्स, कि आपको knowing, you have to know all the approach, know all the constructs, but when it comes to solving it you will find the shorter route। ठीक है, सो दैट आपका टाइम थोड़ा बचे। अब एक और चीज सीखना है हमको इस क्लास में, दैट इज कॉल्ड वैट या टैक्स। टैक्स जो होता है डिस्काउंट का उल्टा होता है। डिस्काउंट आपका दाम कम कर देता है, आपके पॉकेट पे लोड कम कर देता है। 500 रुपए पे डिस्काउंट 100 रुपए मिल गया तो 400 में खरीद लिया आपने। टैक्स आपके पॉकेट के ऊपर लोड बढ़ाता है, because that is the money that goes to the government for running the infrastructure, giving salary to government employees, building roads, giving electricity, what not, right? I mean किसी भी स्टेट को, गवर्नमेंट को, कंट्री को चलाने के लिए lot of money is involved. So we as consumers, we end up paying some extra money for every purchase or every sale that is done by the shop. Okay, so there are three types of taxes. One is called sales tax, one is called VAT, another one is called GST. Okay, this is called goods and services tax, this is called value added tax, this is called sales tax. तो बेसिकली किसी दुकानदार ने कुछ बेचा तो कितने का सामान बेचा उसका कुछ परसेंटेज दे हैव टू गिव अस टैक्स व्हिच इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। लाइकवाइज जो भी बेसिकली दीज आर ऑल फॉर सर्विसेज एंड सेल्स। ओके, आप लोग को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। अभी इतने जानिए कि देयर इज सर्टेन परसेंट ऑफ द सेल अमाउंट दैट गोज एज टैक्स टू गवर्नमेंट। तो अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, अगर देखेंगे सेल्स टैक्स 8% 10% कुछ तो रहता है, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग गवर्नमेंट का कमिटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो what will happen is you will pay 100 plus 8% of 100 which will be this। ठीक है, तो आप you will end up paying 100 plus 8, 108 rupees। देखेंगे बिल में हमेशा रहता है। Let me see who has joined। Okay, तो यहाँ पे इतना ही जानने की जरूरत है कि टैक्स इज ऑन द टॉप ऑफ द मार्क प्राइस। जो भी परसेंटेज तो वही फॉर्मूला रहेगा। हेलो पूजा, हेलो आंचल, जस्ट मुझे आंचल हेलो 5 मिनट सर। दो तीन मिनट दीजिए, जिसमें मैथ का क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर देन विल स्टार्ट विद द इंग्लिश वन। ओके सर। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑलवेज ब्रिंग्स योर कॉस्ट डाउन। आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 10% डिस्काउंट है, 90 में खरीद लेंगे। टैक्स एड्स कॉस्ट टू इट। So basically जब आप when no you purchase something from the store, जो उसमें सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी जो भी रहता है, that adds to the price। तो आप देखेंगे हर एक में रहता है अगर 8% टैक्स है तो 100 into 8/100 मतलब 8 रुपीज का टैक्स। तो 100 रुपए का सामान 108 में मिलेगा। तो दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डिस्काउंट दैट वी हैव लर्न।
ओके, तो ओके, तो बस आप लोग इसके रिलेटेड कुछ सम्स कीजिए, देन नो लेट मी नो अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन सेम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं सेम है, ओनली डिफरेंस इज दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्काउंट, कि आपका डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो आपका मार्क प्राइस में से वो पैसा कम करके आपको पे करना पड़ता है। अगर आप टैक्स अगर नहीं, टैक्स पे करना इज नॉट ऑप्शनल, तो आपका उसके प्राइस पे वो ऐड कर हो जाता है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ सम्स थे जो मैंने रखे थे, यू गाइस कैन जस्ट लुक एट देम, और उसको आपके एक्सरसाइज में जो सम्स है उसको कीजिए और मुझे बताइए इफ यू आर गेटिंग स्टक एनीवेयर, एंड देन विल ट्राई नो सॉल्विंग। ओके।